اب سعدیہ جاوید صاحبہ سندھ حکومت کی ترجمان ہمارے ساتھ ہیں، اور مرتضیٰ وہاب صاحب جو کہ میئر کراچی ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی سے ہیں، سعدیہ صاحبہ بھی پیپلز پارٹی سے ہیں۔ جب مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہل پارک کی زمین 1 انچ بھی زمین کسی کو الاٹ نہیں کی اور تحقیقات کی جا رہی ہیں، تو میں سعدیہ آپ سے بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں، یہ آفیشیل موقف ہے ہل پارک کے حوالے سے، کون ہیں یہ لوگ جن کو نہ این او سے ملا نہ کسی سے اجازت ملی، پھر بھی تعمیراتی سرگرمیاں شروع کر دی اور حکومت کو بھی پتہ نہیں ہے؟ ذرا موقف بتا دیں سندھ حکومت کا۔ تھینک یو ویری مچ، گڈ مارننگ آپ دونوں کو۔ اچھا، مرتضیٰ وہاب صاحب نے تو اس کو بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ دیکھیں کراچی کے جتنے پارکس ہل پارک سمیت وہ کے ایم سی کی پراپرٹی ہیں، اور اس میں کسی تعمیرات کی اجازت کے ایم سی نے نہیں دی۔ انہوں نے اپنی کل پریس کانفرنس میں یہ بھی بات کلیئر کی کہ ایک شہری خاتون نے ان کو فون کیا، انہوں نے تو نام بھی ان کا لیا، شہری خاتون نے فون کیا، انہوں نے بتایا کہ تعمیرات ہو رہی ہے، میں نے ٹیم بھیجی، وہاں کام ہو رہا تھا اور وہ میں نے فوری طور پر کام رکوایا۔ جو این او سی ہے، ظاہر سی بات ہے عید کی چھٹیاں تھیں، عید کے دنوں میں ہی یہ کام ہوا۔ اچھا، اب جو الزام لگایا گیا ہے فاروق ستار صاحب کی طرف سے، فاروق ستار صاحب کو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ پی سی ایچ ایس سوسائٹی فیڈرل سوسائٹی ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت زمین ہے۔ وہاں کے ٹاؤن چیئرمین جو ہیں جماعت اسلامی کے سیف الدین صاحب ہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مرتضیٰ نے بالکل، میئر صاحب نے بالکل واضح یہ کلیئر کیا ہے۔ صدف، اس شہر کی تو زمینوں پہ قبضہ ہوتے ہم نے دیکھا۔ ایک منٹ نہیں، میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ جب مرتضیٰ وہاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہل پارک کی زمین کے ایم سی کی ہے، 1 انچ بھی الاٹ نہیں کیا، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ سارا ایریا جو ہے وہ کے ایم سی کے انڈر آتا ہے۔ آپ بات کر رہی ہیں پی سی ایچ ایس کا کہ جناب وہ جی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ وفاق کے انڈر ہے، تو یہ ہل پارک جو ہے پھر کس کے انڈر ہے؟ ہل پارک کے ایم سی کی پراپرٹی ہے، اس کا افتتاح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر نے کیا ہے۔ میں ہل پارک کی زمین کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ کل انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر ہل پارک کی زمین پہ کنسٹرکشن ہے، نپائی ہم کریں گے۔ اگر ہل پارک کی زمین پہ کنسٹرکشن ہے تو جس نے وہ جعلی این او سی جاری کی ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اور اگر وہ جو سوسائٹی ہے پی سی ایچ ایس جو فیڈرل رجسٹرڈ سوسائٹی ہے، اگر اس میں ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر سوسائٹی ذمہ دار ہوگی اس لیگل کنسٹرکشن کی، کے ایم سی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ یہ مرتضیٰ نے کل اپنی پریس کانفرنس میں بات کلیئر کی ہے۔ دیکھیں شہر پہ قبضہ ہوتے میں نے اور آپ نے دیکھا ہے، قبضے سے تو جان چھڑائی ہے ہم نے۔ لیکن وہ سعدیہ، فاروق ستار صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کے ایم سی کے افسران قبضہ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی بھی ساتھ میں ملی ہوئی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ کے ایم سی میں مرتضیٰ وہاب نے آ کے کوئی بھرتی نہیں کی۔ پہلی دفعہ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ میئر کے ایم سی کے دفتر میں بیٹھا ہے۔ اس سے پہلے اس شہر کے جو پچھلے میئرز رہے ہیں، ناظم رہے ہیں، وہ یا ایم کیو ایم کے تھے یا جماعت اسلامی کے تھے۔ بھرتیاں بھی بے پناہ آپ کے زمانے میں ہوئی۔ یہ وہی افسر ہے، مرتضیٰ اپنے گھر سے یہ افسر نہیں لے کے آیا۔ اگر یہ افسر کرپٹ ہیں، لینڈ مافیا سے ملے ہوئے ہیں، چور ہیں، تو آپ نے کاروائی کیوں نہیں کی تھی؟ مرتضیٰ تو 4 سال سے بیٹھا ہے۔ آپ کا اچھا بالکل ہم تو سعدیہ ایک چیز بتائیں، یہ جو ہل پارک کی زمین ہے یہ معاملہ نیا نہیں ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ایسا ہوتا رہا ہے۔ 2020 کی غالباً بات ہے، عدالت نے بھی زمین واگزار کرانے کا حکم دیا تھا، تو آخر یہ مسئلہ بار بار کیوں سامنے آتا ہے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، یہ میں بالکل نہیں کہوں گی کہ اللیگل لوگ کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، اتنا بڑا نسلہ ٹاور کھڑا ہو گیا تھا، وسیم اختر صاحب میئر تھے نا اس شہر کے، پھر لوگوں کا کتنا نقصان ہوا، یاد ہے نا؟ الادین پارک بنا دیا گیا تھا لوگوں کا۔ میں نے تو نہیں بنایا تھا الادین پارک، یا مرتضیٰ وہاب نے تو نہیں بنایا تھا الادین پارک پہ اب کیا بنا ہوا ہے بائی دا وے؟
नहीं, अब तो उसको मॉडल पार्क ही बनाया जा रहा नहीं, है, वहाँ क्योंकि तो सुप्रीम सालों हो कोर्ट गए के जब ऑर्डर से उसे डिमोलिश किया है, वहाँ पे सिर्फ कचरा पड़ा है। तो हम नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। मेयर कोशिश कर रहा है कि उसको पार्क बनाया जाए, उसको मॉडल पार्क बनाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, वहां और कब कुछ हो भी नहीं बनेगा, मैं सकता। तो ये पूछ रही हूँ। वहाँ हाँ, वो उस पे वो काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। नजर नहीं वसाइल आया की वैसे काम मुझे। जो नहीं काम देखें, बात ये है कि इस शहर के तो पार्कों पे कब्जा था, सेक्टर के दफ्तर होते थे, जब तो आप लोग शो करके सवाल नहीं उठाते थे। कल उनसे प्रेस उठाते थे। कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछना था, किसी ने प्रेस हम हर इशू कॉन्फ्रेंस पे में उनसे सवाल पूछना उठाते हैं, था। यही तो बुरा लगता है कि हम सवाल ही क्यों उठा रहे हैं। मुझे नहीं नहीं अभी नहीं अभी भी नहीं सवाल नहीं, ये है, ये जो तामीरात है ना सादिया, ये ओवरनाइट नहीं होती हैं, रातों रात नहीं हो जाती नहीं, हैं। नहीं, तो इसके लिए मैं भी प्रॉपर नहीं खुदाई कह हुई रही होगी, हूँ। सामान सबसे पहले आया गया होगा, तो किसी को चार- कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, चार दिन- लेबर आई होगी, तो वहाँ पर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और किस हद तक काम हुआ है। सदफ देखे, कल मेयर साहब ने भी ये बात की है कि ये जब खातून ने शिकायत की, उस खातून ने भी इस बात की वजाहत की है कि जब ईद की छुट्टियां हुई, देखिए फ्राइडे से पाकिस्तान में ईद की छुट्टियां शुरू हो गई थी, ईद की छुट्टियां हुई हैं। ईद से ये पहले से नहीं इन्होंने है चल रहा उसी- ये मामला। नहीं, ईद की छुट्टियों में ये कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर ने बताया, ईद से पहले ये मामला बिल्कुल नहीं चल रहा, ईद की छुट्टियों में ये काम हुआ है, और जिस पे कल इतना हंगामा मचा। अब तो जाहिर अगर सी वो बात खातून है, इन्फॉर्म नहीं करती तो आप लोगों को तो पता भी नहीं चलना था। नहीं ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुद ही जाहिर सी आपने बात है, कन्फेस ईद की किया है। छुट्टियों के नहीं, देखें ऐसी बात नहीं, पता तो हमें चल जाता, क्योंकि ईद की छुट्टियां खत्म होती, हिल पार्क के एडमिनिस्ट्रेटर, हिल पार्क के जिम्मेदार जब वहां पहुंचते और वो जो है वो देखते, तो ईद की छुट्टी में ही नहीं, वो मुर्तजा सादिया वहाब शायद आप ने इस चीज से अपडेटेड नहीं है। मुर्तजा वहाब साहब ने भी कल ये कहा है कि ईद से पहले जो है उन्होंने वो काम रुकवाया है। जानना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ, आप ये कह रही है ना कि बार बार कि ईद पे ये इशू हुआ है, ईद से पहले ये इशू हुआ था। कल मुर्तजा वहाब साहब ने भी बात कन्फेस की है। जानना मैं आपसे चाह रहा हूँ कि अब जो मुर्तजा वहाब साहब कह रहे हैं कि इंच इंच नापी जाएगी और बिल्कुल जो है वो किसी तरह की गैर कानूनी तौर पर वो इंच की एक भी जो है वो हिल पार्क की नहीं दी जाएगी किसी को, तो फिर अभी तक बाउंड्री वॉल क्यों नहीं है हिल पार्क की? उसके अतराफ बाउंड्री वॉल का एक बहुत बड़ा इशू है, इंतहाई यहाँ बाउंड्री वॉल, तो बाउंड्री वॉल क्यों नहीं बनाते? जी, हिल पार्क देखें, वैसे तो दुनिया में जो पार्क्स हैं बड़े बड़े उसमें बाउंड्रीज नहीं होती, लेकिन हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि हिल पार्क की जमीन पर बार बार कब्जे की कोशिश की जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है। बिल्कुल उसके इर्द गिर्द दीवार होनी चाहिए ताकि केएमसी को पता हो कि ये मेरा लैंड है, और पीसीएचएस सोसाइटी वाले जो सोसाइटी के जिम्मेदार हैं उनको पता हो कि ये हमारी जमीन है। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रही हूँ कि हिल पार्क के इर्द गिर्द जो है वो दीवार उठानी चाहिए, जो उसकी जो पिछले हिस्से हैं वहां कब्जे की अक्सर और बेशतर कोशिश होती है, जिसको नाकाम बनाते हैं। मासूमाना मुझे तौजीह दी है कि रातों रात जी ईद की छुट्टियां थी, बहरहाल ईद की छुट्टियां नहीं थी, मुर्तजा वहाब साहब ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ राइट नाउ एज वी स्पीक इस वक्त क्या स्टेटस है? अब काम रुक गया है, अब या वहाँ पर जो ब्लॉक्स पड़े हैं, सीमेंट पड़े हैं, वो उठवा देंगे आप लोग या वो वहीं पर रखे रहेंगे? नहीं जी, अब उसका स्टेटस ये है, जाहिर सी बात है, कल उन्होंने मुर्तजा वहाब साहब ने बिल्कुल कहा है कि जो अफसरान आप लोग कह रहे हैं ना, केएमसी के फारूक सत्तार साहब ने भी फरमाया कि केएमसी के करप्ट अफसरान जो आपके दौर की भर्तियां हैं, तो वो जो करप्ट अफसरान अगर कोई इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो वहां नुकसान पहुंचाया गया है, जाहिर सी बात है, तो पहाड़ को नुकसान ही हुआ होगा ना, हिल पार्क की उसके नीचे वो कोशिश कर रहे थे, वहां उसको बराबर किया जाएगा। वहां से सारी चीजें, मलबा या जो भी वहां ईंटें, सीमेंट, बजरी पड़ी है, उसको भी आज ही केएमसी उठवाएगी। आज ही और हमारी कोशिश होगी, यकीन करवा रही है सादिया कि आज ही के आज वहां से बजरी सीमेंट वगैरह उठ जाएगा। आज सब उठेगा। जाहिर सी बात है, क्या नाम है, अमले को लगाया जाएगा और वो सारा उस इलाके को क्लियर करेगा, और इस बात को
कोशिश करके जल्द अज जल्द क्लियर किया जाएगा कि अगर वो हिल पार्क की प्रॉपर्टी है तो उसमें आइंदा ये काम ना हो सके, और अगर वो पीसीएचएस की है तो जरूर पीसीएचएस के जो नुमाइंदे हैं, लीगल एड हैं, उनको बुलाइए, उनसे पूछिए कि ये कैसे हो रहा था। अगर वो इलीगल, वो भी तो इलीगली कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, अगर आप लोग उनका इंतजार करेंगे, लेकिन सामान। अच्छा, मुझे एक बात बता दें कि वो जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अलादीन पार्क भी बना दिया था गैर कानूनी तौर पे, डिमोलिश हुए से आई थिंक 4 साल हो गए डिमोलिश हुए हुए, उसी हफ्ते से ज्यादा। तो वहाँ पे पता है आपको बोर्ड लगा है बागे कराची, मैं वहाँ से रोज गुजरती हूँ, मैं आपको पिक्चर भेजूंगी और टैग करूंगी मुर्तजा वहाब साहब को भी। वहाँ पे बजरी, सीमेंट, वो टूटा हुआ मलबा अभी तक वहीं पर पड़ा है जो डिमोलिश हुआ था। वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, इन 4-5 सालों में तो मैंने होते हुए नहीं देखा। बिल्कुल, अलादीन पार्क हमने तो बनाया नहीं था, चले बिल्कुल सही है, हमारी जिम्मेदारी है तो वो तो बना ले। एक मिनट सदफ, ऐसा लगता है कि ARY हमें कटहरे में तो खड़ा कर देता, लेकिन जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं होती। आप बता दें। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अलादीन पार्क जो है वो टूटा, उसको डिमोलिश किया गया सुप्रीम कोर्ट के उस पे। बिल्कुल ठीक है कि उसमें काम नहीं, ये वो जो है कब टूटा था, बस ये बता दें, मेरी मालूमात में इजाफा करें। मुझे नहीं पता, मुझे तारीख याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि वो एक चीफ जस्टिस आए थे जिनके हुक्म पर कराची में जो है वो नस्ला टावर जो मेरे दौरे हुकूमत में नहीं बना था, अलादीन का पार्क जो मेरे दौरे हुकूमत में कब्जा करके नहीं बनाया गया था, या मेयर कराची मुर्तजा वहाब नहीं था। एहतिसाब सबका होना चाहिए, सवाल तो सब करने। उन्होंने तो आपका काम आसान कर दिया ना, गैर कानूनी तामीरात गिरा दी, तो अब जो असल कानूनी तामीरात होनी है, मेयर आपका है, हुकूमत आपकी है, वसाइल आपके हैं, बना दें पार्क लोगों के लिए। इसलिए देखें, वहाँ पार्क की कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल सही है कि वो शुरू होना चाहिए, पार्क बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि K4 की अकोमोडेशन की वहां से लाइन क्रॉस करनी है, जिसका काम बहुत तेजी से जारी है, इसलिए पार्क के काम में ताखीर है। मैं इस बात से इनकारी नहीं कर रही, बिल्कुल ताखीर है, लेकिन जो कराची में मॉडल पार्क बच्चों के लिए बना के दिए गए, उसको ज़िबा खाना बनाया गया, वहाँ इज्तिमाई कुर्बानियां की गई। उन टाउन चेयरमैन से सवाल करना चाहिए कि इतने पैसे लगा के पार्क बनाए, अब उन पार्कों को आपने ज़िबा खाना में तब्दील किया जो जमात इस्लामी डेडिकेटेड गवर्नमेंट की तरफ से बनाए हुए। देखिए, हमारे यहाँ बिल्कुल कुछ सरकारी स्लॉटर्स हाउस हैं सदफ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं जो इतनी जिम्मेदार शहरी हूँ, लेकिन अगर मुझसे भी कोई कहे, क्योंकि हमारे यहाँ वो रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं, दुनिया में कॉन्सेप्ट है कि स्लॉटर हाउस जानवर जाते हैं, वहीं कुर्बानी होती है, वहां से बनकर आते हैं, लेकिन हम और आप, मुझे आपका नहीं, लेकिन मैं अपनी बात करूँ कि अगर मुझसे कोई कहे कितना हो जाएगा, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, हमारी सोसाइटी नहीं। What's wrong in this रिवाज? नहीं, हमारे यहाँ तो सादिया ATM का रिवाज भी नहीं था। देखिए सायम, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ ना, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जी कुर्बानी होनी है, घर में होनी है, घर में कसाई आएगा, घर में जानवर कटेगा, ये हमारी सोसाइटी। अच्छा सादिया, वैसे हमारी सोसाइटी में तो एक और चीज भी थी कि सीट बेल्ट के बगैर आपने गाड़ी चलानी है, हेलमेट के बगैर आपने बाइक चलानी है। जब स्क्रूटनाइज किया गया, जब मॉनिटरिंग की गई, ई चालान्स आए, कैमरे लगे, तो सबने फिर ओबे भी किया। कौन चाहेगा कि हमारी गली मोहल्ले में बदबू फैले? तो स्लॉटर हाउसेस की अगर फैसिलिटी होगी तो हम सब उसको अवेल करेंगे। नहीं, बिल्कुल स्लॉटर हाउसेस होने चाहिए, हर इलाके में होने चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि जो नई कंस्ट्रक्शन होती है, नई बिल्डिंग्स बनती हैं, उन फ्लैटों में, क्योंकि जाहिर सी बात है वहीं इज्तिमाई कुर्बानी का प्रॉब्लम होता है ना, जब उन फ्लैटों में जगह नहीं होती, तो उनको नक्शे में पास कराना चाहिए कि जी स्लॉटर हाउसेस बनाए जाए कुर्बानी के लिए, स्पेशली आम लोगों ने करने, बिल्डर्स ने करने, तो गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड? नहीं, गवर्नमेंट, दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी, कहीं तो आप लोग रिस्पांसिबिलिटी लें अपनी। नहीं, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, स्लॉटर हाउस बनने चाहिए। गवर्नमेंट तो चले, गवर्नमेंट कराची शहर में जो बनाएगी, लेकिन जितनी बड़ी कराची की आबादी है सदफ,
उतने शायद मैं नहीं समझती कि गवर्नमेंट जो है उतने सारे स्लॉटर जैसे हाउस सादिया आपको कहना चाहिए था कि हाँ, हम बनाएंगे स्लॉटर हाउस, ये तो बना रहे हैं या आप कह बनने रही चाहिए, बनने तो हम कहना चाहिए, चाहिए, ये तो पब्लिक कहती हमें है। हम कह सकते हैं ना कि हाँ। मतलब आम आवाम में शामिल हम कह सकते हैं कि बनने चाहिए, आप तो कहें कि हम बनाएंगे। नहीं जी, तो मैं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट तो स्लॉटर हाउसेस बना देंगे, लेकिन लोगों को भी अवेयरनेस देने की जरूरत है। भाई ई दुनिया चालान में लोग भारी slaughter- चालान दे रहे हैं ना, तो इसी तरह Enforcement की तरफ। enforcement याद है करा ना, दें। आप और साइम कितने लोग आते थे ई चालान के खिलाफ, कोर्ट भी गए, हैं? कितना शोर पड़ा था। We never हाँ, did that। ये तो आपने इल्जाम लगा दिया हम पे। नहीं, मैंने आप पे इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कहा लोग सादिया, ई-चालान ये के आप तो खिलाफ गलत भी इन्फॉर्मेशन कोर्ट चले पहुंचाई गए। है किसी ने, हम तो बड़ा इंडोर्स कर रहे थे, नहीं, मेरे नहीं, पास तो नहीं। कराची में गाड़ी भी नहीं है, मैंने किस चलान पे जाना है। साइम मैंने ये नहीं कहा कि आप ई चालान के खिलाफ, मैंने कहा लोग, जमात इस्लामी का केस पेंडिंग है ई चालान के खिलाफ कोर्ट में कि जुर्माने कम किए जाएं। लोगों को, मैं असेंबली में उस मौजूद मेंबर का नाम नहीं लेना चाहती जिसने कहा है कि रिलैक्स किया जाए, कि हमें सीट बेल्ट नहीं लगानी। मैं उस मौजूद मेंबर का चल assembly सादिया में देखिए, नाम नहीं लेना ऐसे चाहती। नाक़िद तो होते ही रहते हैं, लेकिन जब हुकूमत अच्छा काम करती है तो पब्लिक भी सपोर्ट करते हैं और लोग भी हाँ, कानून आप के देखें ना, जैसे कानून solid को waste सपोर्ट ने करते हैं। सॉलिड वेस्ट ने शहर में अच्छा काम किया, उसकी तारीफ करनी चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने शहर में अच्छा काम किया। जमात इस्लामी के अपने टाउन चेयरमैन की मेरे पास वीडियो मौजूद है जिन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन जब हाफिज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा तो कि भाई जी, उनके हमें बॉस accept है तो वो मुर्तजा कराची साहब है का। ना, वो पूछे सारे टाउन चेयरमैन से कि क्या मसला है। अच्छा अरे जी, हमें ये हमसे बता क्या? दें, ये हिल पार्क वाला मामला कल तक हम अगर अपना रिपोर्टर भेजते हैं, नुमाइंदा भेजते हैं, तो वहाँ पर सारा सामान गायब होगा, सब साफ होगा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही होगी। जी, कंस्ट्रक्शन तो वहाँ ऑलरेडी रुकी हुई है, कंस्ट्रक्शन तो वहाँ हो ही नहीं रही है। जाहिर सी बात है कि जो वहाँ सामान, तामीराती सामान पहुंचाया गया, उसको रिमूव करा दिया जाएगा। और जो एनओसी है, वो मेयर साहब ने कल ही बताया है कि वो केएमसी ने कोई एनओसी जारी नहीं की है, वो जाली है। उसके बाद बाकी आप कल बिल्कुल अपना रिपोर्टर भेजिएगा और ठीक जगह है। को चेक करवाइए। Lovely. Thank you very much, Sadia, for taking out time for our program. Good morning to you once again.